Students, today we will start our third lesson, which is managing files and folders in Windows. We already covered some points of it in our previous lecture, and the points were Windows Explorer, then how we can open Window Explorer, how we can create a new folder in any drive or in any uh, folder, you can say, means we can create folder into the folder in another folder, how we can copy a folder and paste it in another place, and same way how we can delete the folder, and when we delete the folder we can get it from the recycle bin back. ठीक है, तो वहां से हम कैसे इसको, and when we get back our file from recycle bin, it is called restore, and the deleted file will automatically come on the same place from where it was deleted. Right, beta? I hope you all understand all these concepts. Now we will start our new topic, that is searching a file and a folder. Suppose students, here I am opening Windows Explorer first, all programs, then accessories, and from there you can choose Windows Explorer like this. Okay, now suppose we want to search a file that is that has a name, and what is its name we already forget, right? Then how we can find out our main file or the file which we are searching, how we can search it, because we have thousands and lakhs of files in our computer, and from these thousands and lakhs of files, how we can find out our file, our single file, right? So it is quite difficult without the commands. अगर आप फोल्डर्स में जा जाके ऐसे इसको ढूंढना चाहते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट. ये बहुत सारे फाइल फोल्डर्स बने हुए हैं. I already told that the box which is with yellow color, it is called a folder, and the folder can have some files or another folders, right? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हो जाते हैं, बहुत सारी लोकेशंस हो जाती है. From there we can't search our file directly. So what is the solution of it? We have the solution of it. What is it? Suppose you want to search a file. I am taking a name of a file which we already studied about, and the suppose ये मैंने एक फाइल लिया था, एक्टिविटी कैलेंडर 2018-19, एंड दिस नेम यू ऑलरेडी फॉरगेट, कि ये नाम आपको याद नहीं रहा कि भी आपको ये फाइल थी और आप उसका नाम भूल गए हैं. देन हाउ यू कैन फाइंड आउट इट? देन इट इज वेरी सिंपल, not very complicated, very simple, right? It is not complicated at all. Go to start button, and then you will find a search box at the first level. Click in it. What was the file name? Activity calendar. I am typing activity. अब हम भूल गए हैं कि ये कहां पे थी. सपोज नाम, अभी मैं आपको हर एक केस करके दिखाऊंगा कि आप नाम भी भूल जाते हैं, डाटा भूल जाते हैं, या टाइम भूल जाते हैं, क्या है, तो वो सारी चीजें. अब फर्स्ट केस के अंदर हम मान रहे हैं कि नाम हमें याद है, लोकेशन हम भूल गए हैं कि फाइल कहां पे है. ठीक है, तो मैंने किया एक्टिविटी कैलेंडर, मेरे को नाम याद था, सपोज स्पेलिंग ठीक लिखनी पड़ेगी. ये देखिए एक्टिविटी कैलेंडर 2000, ये आ गई हैं सारी फाइलें. यहां पे कुछ फाइल्स आपको आएंगी नजर. अगर आपको बाकी और फाइल्स भी देखनी है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सी मोर रिजल्ट्स. क्लिक ऑन इट, इट विल ओपन. अब इसको जो मेन फाइलें मिली बाहर, वो ये वाली फाइलें मिली हैं जो इसने आपको एक आइकन के रूप में दिखा दी हैं. बट इफ यू वांट टू गो फर्दर, गो डीपली, एंड यू वांट एवरी फाइल विद दिस नेम, दिस डाटा फ्रॉम योर एंटायर कंप्यूटर, कि पूरे कंप्यूटर में ये फाइल और कहां कहां पे है इस नाम से, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंप्यूटर बटन. क्लिक ऑन इट, एंड विद दिस नेम यू विल हैव all the files with a proper list within some seconds,
Wait for it. Now you can see the computer is searching very fast. You can see the green bar at the top. It is filling very fast. It means computer is searching from the hard disk. Now you can observe, as well as it is searching the files, the display of the same file are coming instantly. Look, the progress bar is moving on and the files also displayed in a list. Look, one more ad. What is the condition? Condition is activity calendar and there is no condition for the type of file. हमने ये नहीं लिखा है कि एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है, या पेंट ब्रश की फाइल है, या फिर पावर पॉइंट की फाइल है. हमने कुछ नहीं लिखा. वी जस्ट टाइप द नेम ऑफ इट. ठीक है ना, हमने सिर्फ नाम लिखा. लेकिन बस नाम में आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग शुड बी सेम एज यू असाइंड इन द नेम ऑफ द फाइल. अगर आपने यहां कुछ अलग कर दिया, कैलेंडर के अंदर आपने CALENDER कर दिया, तब ये फाइलें ये नहीं ढूंढेगा. ध्यान रखना इस बात का. ठीक है, तो पूरे कंप्यूटर के अंदर जो इसको ये फाइलें मिली हैं वो ये फाइलें मिल गई हैं. मैं इसको क्रॉस कर देता हूं क्योंकि और फाइल्स नहीं मिल रही हैं. तो इनमें से हमारी फाइल कौन सी है ये जानने के लिए यहां पे कुछ व्यूज हैं हमारे पास. मोर ऑप्शंस क्लिक कर दो. ये मीडियम हो गया. अगर पूरी डिटेल चाहिए तो डिटेल पे क्लिक कर दो. डिटेल पे क्लिक करने से हमें क्या फायदा होने वाला है कि ये फाइल हम देखना चाहते हैं कहां पे है, क्योंकि हमें तो लोकेशन देखनी है कि फाइल कहां है. ये देखो यहां पर बैकअप, यहां पर एक ये फाइल पड़ी हुई है. दूसरा आपने देखना है कि यहां पर और वो फाइल कहां पे है, कैलेंडर एक्टिविटी. एक फाइल यहां पे है, ये माई फोल्डर में, डी ड्राइव में, उसके अंदर 2020 और 21 फोल्डर है, उसमें पेन ड्राइव नाम से फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल है. तो इसमें से जो भी फाइल आप चाहो यू कैन ओपन. सपोज आई वांट टू ओपन दिस फाइल. डबल क्लिक ऑन इट, द फाइल विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. देखिए यहां पर ये फाइल आपकी तैयार हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप अपनी फाइल को ढूंढ सकते हो बहुत ही इजी तरीके से. तो ये तो हुआ सिंपल. कब? जब आप सोचते हैं कि आपको फाइल नेम तो मालूम है लेकिन आपको क्या याद नहीं है, आपको उसका लोकेशन याद नहीं है कि आपने किस फोल्डर के अंदर इसको सेव किया था. अब दूसरी कंडीशन मैं लेके चल रहा हूं. सपोज यू फॉरगेट द नेम ऑफ इट, लेकिन आपको थोड़ा सा याद है कि कुछ था. आपको मान लीजिए आपको याद है एक्टिविटी के नाम से था, कैलेंडर आप भूल गए. तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, लुक देखो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जैसे सर्चिंग यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स. इसके अंदर कुछ वाइल्ड कार्ड हम लोग यूज करेंगे. ये देखो मैंने एक्टिविटी लिखा था, तो एक्टिविटी से रिलेटेड हर तरह की फाइल आ रही है अपने आप. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. कंप्यूटर इज सर्चिंग बाय इट्स ओन. यू कैन ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस आई एम टेलिंग यू योर नेक्स्ट कमांड. दिस इज यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स. व्हाट इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स? Wild card character means some sign which we can add with the name of the file so that we can search our file fast or accurately. Right? कैसे? क्योंकि इसके अंदर वाइल्ड कार्ड हमारे पास क्या क्या है. पहला वाइल्ड कार्ड हमारे पास है, वाइल्ड कार्ड हमारे पास है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हमारे पास है स्टार. तो स्टार का मतलब क्या है? द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ सर्च टर्म. A string of text can be any number of characters. जैसे मान लीजिए मैंने किया यहां पे AC. अब आप देख रहे हैं AC और उसके बाद मैंने लगा दिया स्टार. ACT एक्ट मुझे याद है, मैंने स्टार लगा दिया उसके बाद. इसका मतलब क्या है कि ये वो सब फाइलें और फोल्डर को ढूंढेगा जिसके आगे ACT लगा है और उसके बाद कितना भी लंबा नाम है, कोई प्रॉब्लम उसके पास नहीं है. ये देखिए जितने भी फाइल्स आपको नजर आ रही हैं, यू कैन ऑब्जर्व दैट येलो कलर इज डिनोटिंग द एग्जैक्ट सर्चिंग क्राइटेरिया. हमारे पास क्या था, ACT हमने क्राइटेरिया दिया है, उसके अंदर हम उसके बाद हमने स्टार इंसर्ट कर दिया. स्टार लगाने से क्या होगा कि ACT तो नाम में हो, उसके आगे पीछे कुछ भी हो, सब सारी की सारी फाइलें वो उठा लेगा. देखिए यहां पर मान लीजिए फर्स्ट का एग्जाम्पल लेते हैं. ये आ गया कैलेंडर एक्टिविटी, एक्ट आ गया तो आगे ढूंढ दिया. ये क्या है, नेटवर्क एक्शन, एक्शन के अंदर भी एक्ट था तो इसने ढूंढ दिया. अब इसके अंदर क्या है, वीडियो नो एक्टिव, एक्टिव के अंदर फिर एक्ट आ गया, इसने ये भी ढूंढ दिया. तो इस तरह से ये सारा डाटा, ये देखो कितनी सारी फाइलें इसने कंप्यूटर ने ढूंढ दी हैं. 498 फाइल्स, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
498 फाइल्स। तो 498 फाइल्स के अंदर हमें ये डाटा मिल रहा है जिसके अंदर आप सर्चिंग कर सकते हैं। ये सारी की सारी है, इनको इनके अंदर कुछ भी सर्च आप कर लीजिए, जो भी फाइल आपको, इसको नाम देख के आपको याद आ जाएगा। तो ये दूसरी ऑप्शन थी हमारी वाइल्ड कार्ड स्टार वाली। एक वाइल्ड कार्ड हमारे पास और होता है, उस वाइल्ड कार्ड का नाम होता है, देखने में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उस वाइल्ड कार्ड को हम बोलते हैं लिटरल। क्या बोलते हैं? लिटरल। तो ये लिटरल क्या काम आएगा? मान लीजिए आपको एक्ट फाइल आपको याद आ गई और उसके साथ आपको याद है कि भाई कम से कम दो अक्षर और थे, लेकिन वो याद नहीं आ रहा क्या थे, तो आप उसको लिटरल को यूज कर दोगे। तो वो दो नाम आप याद कर लोगे, एक्ट के साथ 2 स्टार आपने लगा दिए, तो वो 2 स्टार के साथ आप ढूंढ सकते हैं। देखिए धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आपको ढूंढ के दिखा देगा। और अगर आपको चलो नाम भी याद नहीं है, पहला अक्षर भी याद नहीं है सपोज, एंड यू वांट टू सर्च आउट विद द हेल्प ऑफ लिटरल, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि 3 अक्षर हैं, सिर्फ 3 अक्षर लिटरल में, तो आपने 3 क्वेश्चन मार्क डाल दिए। अब ये आपके सामने जो रिजल्ट आएगा आप वो ऑब्जर्व करना। तो जितने अक्षर आपको ढूंढने हैं, जितने अक्षर के नाम वाली फाइल आपने ढूंढनी है, उतने ही लिटरल आपने लगा देने हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर मान लीजिए इसके बाद डॉट लगा दिया और मैं ढूंढना चाहता हूं कि DOC। अब देखिए इसने कोई फाइल नहीं निकाली, इसका मतलब क्या है कि इसके पास इतने छोटे नाम वाली फाइल कोई नहीं है। ये देखो यहां आ गया, DOC के नाम से आ गए सभी। मैं एक और लगा देता हूं इसमें, ये देखिए यहां पे आया है कुछ। देखो मेरी कंडीशन क्या थी? 3 मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स आई वांट द फाइल विच नेम इज ऑफ ओनली 3 अल्फाबेट्स, राइट? तो 3 अल्फाबेट या 3 डिजिट का नाम होगा उसका, और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? डॉक, DOC यानी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या किया, इसने यहां पे दे दिया आपको। अब ये दिया है जो पहले वाले को ही देख लीजिए आप, इसने लिखा है +2। +2 में 3 डिजिट, 3 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, 3 अल्फाबेट्स वी यूज्ड। फर्स्ट इज X, सेकंड इज I एंड थर्ड इज ऑल्सो I। ठीक है, ऐसे ये देखो यहां पे PPP 3 अक्षर हैं, राइट? एक्सटेंशन क्या है इसकी? टाइप क्या है? डॉक्यूमेंट। ये देखो आपके सामने। ठीक है, एक और दे दिया MSG, ये भी 3 है। SMC ये भी 3 है। SQQ, CAA, PTA, यानी 3 तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 से कम नहीं आ सकते, 3 से कम भी आ सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे कभी भी, ये ध्यान रखना। जैसे देखो 7 आ गया, 7, 12, ये 1 डिजिट, 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, SHO। तो ये इस तरह की फाइलें आपके सामने आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको अगर याद है कि मैंने नाम तो दिया था लेकिन सिर्फ 3 अल्फाबेट्स का था, ये नहीं याद आ रहा क्या दिया था, तो इस तरह भी आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इट मेक्स आवर सर्चिंग वेरी इजी एंड क्विक। अब इसके बाद मान लीजिए आपको याद आ गया कि भाई मैं तो 4 अक्षर थे, तो 4 कर दो। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट? इट्स सो इजी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो ये सर्चिंग की हमारी ऑप्शंस थी कुछ एक जो हम ढूंढ रहे थे। मान लीजिए आप चाहते हो कि सारी की सारी पावर पॉइंट की फाइल्स मुझे नजर आ जाएं जो इस कंप्यूटर में है, तो क्या करो? स्टार लिख दो पहले। तो स्टार का मतलब क्या? कि सारी की सारी फाइलें, उसका कितना भी लंबा नाम हो वो स्टार में कवर होता है। फिर डॉट, और उसके बाद आप लिख देते हैं मान लीजिए PPT, यानी पावर पॉइंट की एक्सटेंशन। अब देखिए सर्च आउट हो रहा है बड़ा फास्ट, और जितनी पावर पॉइंट की फाइल्स हैं ये देखिए आपके सामने सारी आ गई हैं। नीचे टोटल भी इसने बता दिया, इट इज 257, राइट बेटा? तो इस तरह से आप इसकी फाइलों को ढूंढ सकते हैं जो फाइल आपको चाहिए। अगर आप भूल गए हैं नाम, या वैसे भी देखना चाहते हैं नाम आपको पता भी नहीं है, फिर भी आप ढूंढना चाहते हो कि देखते हैं इस कंप्यूटर में क्या क्या है, तो यू कैन सर्च आउट वेरी इजी, राइट? अब इसके बाद आता है हमारे सामने, ये सामने मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि D ड्राइव में ओपन कर लेता हूं। अब ये जो लिस्ट आ रही है, कई बार क्या होता है कि हम लोग ये ढूंढना चाहते हैं कि ये किस हिसाब से लिस्ट आए। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अल्फाबेट के हिसाब से आई हुई है। A वाले पहले हैं, ये देखो, फिर B वाले आएंगे, फिर C वाले आएंगे। लेकिन इफ यू वांट टू चेंज द सेटिंग ऑफ इट, इट इज क्वाइट इजी। व्हाट कैन यू डू? You just right click in the blank area, and after that
you will find some more options in the shortcut menu, right? And you can choose option. I will explain one by one. Okay. And then the first option is view. What is view? What is view? View means we have some option in view, that is extra large icons, medium icons, small icons, list, details, styles, and content. Right. So I will click on first one. Look, if somebody has some eyesight problem, अगर उसको ज्यादा छोटे अक्षर नहीं दिखते हैं, छोटी इमेजेस नहीं दिखती हैं, then you can choose this option and you can observe that it is big enough, right now, to identify the name of the folders. सेम ऐसे ही फाइल के नाम भी आएंगे नीचे, ये देखो इतने बड़े बड़े आए हैं, ठीक है. ये ज्यादा बड़ा हो गया है, छोटा कर लो, और आप छोटा कर सकते हो, इससे भी छोटा कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, और फिर डिटेल कर सकते हो, और फिर टाइल्स बना सकते हो, और फिर कंटेंट बेस कर सकते हो. तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन इट, राइट बेटा. इसको मैं लिस्ट फॉर्मेट में ले लेता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए डिटेल में, ठीक है. यहां से हम चले थे, तो दैट वाज व्यू एंड लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, ये सारी बातें हमारी हो चुकी. दूसरा है सोर्ट बाय. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इन योर सिलेबस एज वेल. सोर्ट बाय, आप किस हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहते हैं. व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द फाइल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. आप इसको मैथमेटिक्स में करते होंगे, है ना. असेंडिंग ऑर्डर, जब सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट, देन बिगर देन इट, और इस तरह से नीचे तक आप जाते थे. और ऐसे डिसेंडिंग में क्या था, इसका उल्टा था, सबसे बड़ी डिजिट. ऐसे जब हम अल्फाबेट में असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं, इट मींस असेंडिंग मींस ए टू जेड और डिसेंडिंग मींस जेड टू ए. ओके. तो अगर आप सॉर्टिंग करते हैं नेम के अकॉर्डिंग, देन यू कैन ऑब्जर्व द चेंज. लुक नाउ, देखो जेड वाला ऊपर आ गया, अब ये हो गया डिसेंडिंग, और धीरे 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 करके ये ए तक जाएगा. आप लोग देख लीजिए, ठीक है. दोबारा मैं कर रहा हूं यहां पे सॉर्टिंग. टाइप, टाइप में क्या हुआ, फोल्डर्स आ गए सबसे पहले येलो बॉक्स में डिनोट हो रहे हैं. देन आपके पास पीडीएफ फाइल्स आ गई हैं. उसके बाद कुछ पिक्स जो आपकी थी यहाँ पे इस फोल्डर में, डी फोल्डर में, डी ड्राइव में, वो आ गई हैं. आफ्टर दैट ऑल एक्सेल फाइल्स, देन ऑल वर्ड फाइल, एंड फाइनली जो मूवी फाइल्स पड़ी थी हमारे पास मूवी फॉर्मेट की, वो आ गई हैं आपके सामने. ठीक है बेटा. तो इस तरह से आप इनको अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हैं. देन अगेन सॉर्टिंग, दिस इज साइज. अब साइज के अकॉर्डिंग आ गया. देखो सबसे बड़ा साइज इस फाइल का है, इस फाइल का साइज सबसे बड़ा है. ये जो भी एक मूवी पड़ी हुई है, इसका कितना साइज है, बहुत बड़ा साइज है ना. यानी तकरीबन 700 MB, 774 MB का साइज है. फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट में सबसे कम. यू कैन ऑब्जर्व, ये बात हो रही है फाइल्स की. फोल्डर के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, फोल्डर को इसने दूसरे तरीके किया हुआ है. और फिर सॉर्टिंग, अगर आप करते हैं असेंडिंग, ये देखो असेंडिंग आ गया. सबसे पहले तो फोल्डर ही आएंगे क्योंकि इट हैज न्यूमेरिक नेम, तो न्यूमेरिक वैल्यू पहले आ जाती हैं. उसके बाद देखिए आप ए बी 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 सी सी सी, और ये लास्ट तक आपका जाएगा जेड तक. ठीक है. ये देखो एक्स तक फोल्डर था, अभी लास्ट में इसी तरह से ये देखो ये जेड जेड वाली वैल्यू आ गई फिर बाद में. ओके बेटा. तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. और इसमें क्या ऑप्शंस हैं, डिसेंडिंग बिल्कुल अपोजिट ऑफ इट जो अभी तक आपने किया. ठीक है. तो नॉर्मली वी टेक इट एज असेंडिंग ऑर्डर, राइट. अब इसमें लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशंस. जब आप एक से ज्यादा फाइल्स को यूज करते हो, एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, तब आप कैसे विंडोज को साथ साथ लेके आ सकते हो. ठीक है. तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2-3 मैंने फोल्डर्स खोले हुए हैं. देखिए एक फोल्डर ये खोला हुआ है, एक फोल्डर ये खोला हुआ है, एक मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, कुछ मैं ये जूम वाले फोल्डर आपके ओपन किए हुए हैं जिसकी हेल्प से मैं मीटिंग ले रहा हूं बेटा. ठीक है. राइट. तो अब मैं इसको देखो, मैं क्या करने वाला हूं, जहां भी टास्क बार में खाली जगह आपको नजर आए वहां पे राइट क्लिक कीजिए, और यहां पर किसी एक को मैं क्लोज कर देता हूं.
ये देखिए यहां मुझे खाली खाली जगह मिली है, मैंने यहां राइट क्लिक किया और मैं करूंगा शो विंडोज साइड बाय साइड। जब मैं इसको करता हूं एकदम से आपके सामने एक जैसे मिराकल हो जाता है, जैसे मैजिक हो जाता है, ऐसे होगा। ये देखो क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन दो हिस्सों में बट गई अपने आप। जो भी मेन दो सॉफ्टवेयर ओपन थे, अभी कौन कौन से सॉफ्टवेयर ओपन है, एक तो मैंने विंडो एक्सप्लोरर ओपन किया हुआ है एंड अनदर वन इज जूम ऐप, राइट। तो ये देखो दोनों आ गई हैं और दोनों में आप साथ साथ काम कर सकते हो। देखो मैं यहां भी क्लिक कर सकता हूं, मैं यहां भी क्लिक कर सकता हूं, दोनों को साथ साथ हम करके काम कर सकते हैं। ये कमांड हमारे कब यूज होती है, व्हेन वी वांट टू कंपेयर द डाटा विद अनदर फोल्डर और अनदर फाइल। तो उस वक्त हम इनको पैरेलल स्क्रीन दे देते हैं और इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा। नाउ द this lesson is completed. It's back exercise and question answer I will send you in the form of PDF and you will write in your book after that. Okay. Now I am going to end this meeting. Have a nice day.